Johar Lord Buddha Foundation. I welcome you all for this internship, and I hope for your active engagement and full attention throughout this session. It's a privilege to have Professor Dr. Bulu Maharana serve with us today, and on behalf of Johar Lord Buddha Foundation, I extend a warm welcome to you, sir. Our topic of discussion for today's session will be education for sustainable development, and Sir will be our expert. He will guide us through this topic and share his expertise on this subject. Before we start with the session, I would like to take this moment to introduce our respected guest for today. Professor Bulu Maharana sir is serving as professor and HOD in the postgraduate department of Library and Information Science, Sambalpur University. To his rich professional background, he has started his career as a library professional in Indian Institute of Management, Indore, and subsequently joined in teaching and continuing as such for last 23 years. Dr. Marana is a postgraduate in economics as well as in library and information science from Sambalpur University. To his remarkable achievement, he has earned his MPhil and PhD degrees in library and information science from the same university. His areas of specialization includes information retrieval, digital library, and open access to scholarly information. He has published 2 books and more than 80 research papers and scholarly articles in various national and international journals. He has been serving as a member of the National Editorial Advisory Board and peer reviewer of many national and international journals. He has successfully guided 5 research scholars at doctoral and 40 scholars at MPhil level. Maharana Sir has also been discharging his duties in key administrative positions at Sambalpur University, including Director, MMTTC, Professor in charge of Central Library, Chairman, Board of Studies, NIRF, Nodal Officer, NAD, Director, HRDC, and more. Sir, I'm sure your vision, experiences, and expertise will inspire us in every aspects of life, and we are truly honored to have you with us today. Now, I would like to invite our coordinator, ma'am, Dr. Anita Mishra, to extend a warm welcome to our esteemed guest. Thank you, Navanita. Sir, on behalf of Jawaharlal Buddha Foundation, I extend a warm welcome for today's session, sir. And thank you, sir, for giving us your time uh, from your busy schedule. स्टूडेंट सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं और वो मेरे भी गुरु हैं और आप लोग देखिएगा वो कितना अच्छे से आप लोग को मतलब इस क्लास में आप लोग को कितने मतलब एक अपनापन आएगा ठीक है आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे दैट सर विथ अस एंड सर का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोग सस्टेनेबिलिटी पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं या प्रोजेक्ट वगैरह भी आप लोग को मिल रहा है और एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी का क्या रिलेशन है कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन एक प्राइम रोल प्ले करता है उसके बारे में सर आज हम लोग को बताएंगे सर वेलकम सर Thank you, Anita. Thank you, Navanita, for so nicely introducing. And it's always a privilege and also an honor to be interacting with young students like you. Anita has been a student of mine, and she is equally very competent and very uh, student friendly teacher. I know her from the time when she was a student here, and उसके बाद जब उसने वहां से आपका एज ए टीचर शी स्टार्टेड her career और बहुत अच्छा लग रहा है कि 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और ये बहुत बड़ा कॉज है, बिकॉज आज जो है एजुकेशन सिस्टम ये ये एक फोरसाइट देता है कि टू लुक बियॉन्ड द करिकुलम। करिकुलम है उसका बियॉन्ड देखना, और और उसको फोकस करना कि एजुकेशन कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में काम में है, और ये हमारा एज ए इंडिविजुअल वी विल ग्रो विद इट, as a community and as a nation as a whole, and the world together get the benefit of education। उसका ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसमें एक जो एस्पेक्ट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आजकल ये एक बज टर्म बन गया है। एंड हर एक चीज में जैसे कि हम लोग कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसमें कोई स्टैंडर्ड मार्क वगैरह है या नहीं, आईएसओ सर्टिफिकेशन है या नहीं, बिकॉज इट गारंटीज यू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वैसे ही एजुकेशन भी और दूसरी चीजें भी अभी लाइक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए प्राइम focus, that in every sphere we want to ensure that it is environmental friendly, और तब जाके वो सस्टेनेबल बनेगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में we will be discussing that how education goes along with the sustainable development principles, and how sustainable development is integrated into our curricula right from the school level to the higher education institutions, like you are studying at undergraduate, postgraduate levels। So आप सब अब देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे हो रहा है हमारे चारों तरफ। देयर आर लॉट ऑफ डिविएशंस आर हैपनिंग। कोई बारिश हो रहा है तो इतना ज्यादा हो रहा है कि बाढ़ आ जाता है, कभी बारिश नहीं होता है तो ड्राउट होता है, एंड देयर आर इरेगुलरिटीज इन the climate that you have seen, and the changes in the climate has been reported all across the world। और साइक्लोन्स आना, और सी एरोजन आना होना, और जो लोकेशंस है, जो जो ह्यूमन लोकेशंस है, वो समुद्र में मिल जाना, मतलब द सी is encroaching into the locations। so ये सारा चेंजेस हम लोग अभी देख रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस। सिमिलरली हमारा सोसाइटल चेंजेस भी देख रहे हैं हम लोग, एंड उसमें जो बहुत सारी चीजें जो कि है एक बहुत बड़ा चीज है कि इनटॉलरेंस हम देख रहे हैं लोगों में, और देयर इज ए अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ लाइक अचीविंग समथिंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, वो भी देख रहे हैं। एंड पीपल आर नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द अदर्स। ये सारा चीज हो रहा है, कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं। we are more influenced by the culture that has been influencing us, और हमारा खुद का कल्चर जो उसमें चेंजेस आ रहा है, ये सारा जो हो रहा है, ये एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू मेक द होल अर्थ टू बी सस्टेनेबल। कहीं ना कहीं जाके ये थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सो इसलिए जबकि हम we are at different levels of our study, at undergraduate और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हमको अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमारे अवेयरनेस ही एक्चुअली एक्शन को एक्शन में बदलेगा, तब जाके धीरे धीरे ये प्रोसेस चेंजेस आएंगे। और हम लोग जबकि we cannot entirely stop the process of change that is happening, but then हम उसको, उसका जो पेस है, उसका जो गति है, उसको कम कर सकते हैं, so that we can get a longer window time to sustain the earth।
तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली हम लोग बात करेंगे, एंड आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन नाउ एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर। और कहीं भी कहाँ पे आपको लगे कि कुछ मन में आ रहा है या कुछ पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं इमीडिएटली, आपको अनम्यूट करके। ओके so is my PPT visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the topic is education for sustainable development. ये पहला स्लाइड में आप देखें कि एनवायरमेंटल इमरजेंसी जिसको बोला जाता है, वी आर नाउ इन एन इमरजेंसी। हम चारों तरफ देख रहे हैं वाटर एंड वाइंड रिलेटेड इमरजेंसीज हो रहे हैं, जिसमें फ्लड, साइक्लोन्स, वाइंड स्टॉर्म्स, कोस्टल एरोजन्स हो रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, डैम्स टूट रहे हैं, ड्रॉट्स, वाटर शॉर्टेजेस, हेल स्टॉर्म्स, सैंड स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग रिलेटेड जो कैजुअलिटीज हो रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। हमारे चारों तरफ ये घटनाएं घट रही है और डे टू डे बेसिस में हम लोग न्यूज में ये सारे देख रहे हैं। ऐसे ही अर्थ रिलेटेड इमरजेंसीज जिसमें अर्थक्वेक्स है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, मड फ्लोज हो रहे हैं। विदेशों में आपने देखा होगा मड फ्लोज आते हैं और सारे बस्ती, सारे मतलब जो ह्यूमन रेजिडेंशियल एरियाज हैं उसमें it causes the property of the people, and glacial outbursts हो रहे हैं, volcanic eruptions हो रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, and lot of things are happening. Similarly, fire related emergency हो रहा है, wildfires and structural fires हो रहे हैं, टेम्परेचर रिलेटेड इमरजेंसी जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड हो रहे हैं या एक्सट्रीम हीट हो रहा है, जहाँ पे हीट होना चाहिए वहाँ पे कोल्ड दिख रहे हैं, जहाँ कोल्ड होना चाहिए वहाँ पे हीट ज़्यादा बढ़ रहा है। सो एक्यूट एक्सपोजर टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर हम लोग ये अभी अनुभव कर रहे हैं। सो इसको हम लोग इमरजेंसी की तरह ही देखना चाहिए। कमिंग बैक टू our country, India, we find that a lot of these things are happening, जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहे हैं। आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये दिल्ली का है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले नवंबर के महीने में the schools were closed. The government has closed the schools and they said the students will actually take online lessons from their homes. क्यों ऐसा हो रहा है? अभी कोविड नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है एंड ऑल दिल्ली स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड एंड क्लासेस विल बी कंडक्टेड वर्चुअली। ये चीफ मिनिस्टर दिल्ली का अनाउंस किए। सो ये दिल्ली सबसे बड़ा जो एयर पोल्यूशन का हब बना हुआ है। सिमिलरली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत बड़े बड़े सिटीज में हम देखेंगे कि अभी एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चिंता के कारण बना है। देन वाटर पोल्यूशन रॉ सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ्स हो रहे हैं एंड अदर सोर्सेस जिसमें इंडस्ट्रीज का जो जो लेफ्ट आउट्स हैं केमिकल्स वगैरह वो आके नदी में मिल रहा है एंड उसका वाटर बॉडीज का जो पानी है वो पॉल्यूट हो रहे हैं। So we are experiencing droughts, heat waves, and flash floods and other such events. And waste management में हम लोग देख रहे हैं कि India is producing a high level of wastes, both biological as well as
the organic and inorganic waste, जिसमें बहुत सारा भाग जो 69% is only 69%. So में से only 69% is collected and only 19% is treated, and the rest 81% is not treated. So that is accumulated in the environment, and later on it causes a lot of harmful diseases and other things. It makes the land barren, उसमें कोई फसल नहीं हो रहा है, तो ये सारा हो रहा है. बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहे हैं. इंडियाज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर सिंकिंग. जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते थे हम, अभी ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो एक्सटिंक्ट के कगार पर खड़े हैं. कुछ दिन के बाद हम शायद वो सारे एनिमल्स, बर्ड्स को नहीं देख पाएंगे. ये सब हो रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस. और सॉइल इरोजन हो रहे हैं, जैसे कि India loses 21 tons of soil per hectare due to soil erosion now, so which is caused by deforestation, overgrazing and other factors. So deforestation की वजह से soil erosion हो रहे हैं. जब बारिश होता है तो soil erosion हो रहा है. And climate change is happening. India is expected to pay high price for the impacts of climate change. Heat waves, many people are dying because of. जब समर आता है तो हम देखें हैं कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आता है कि सनस्ट्रोक में लोगों का जान चला जाता है. फ्लड्स आते हैं, वाइल्ड फायर्स आते हैं. ये सारा सब कुछ हो रहा है. These are all threats to the human life and property. So रिसोर्स डिप्लेशन हो रहे हैं, रिसोर्स घट रहे हैं, जो संपदा हमारा घट रहे हैं. इंडिया इज डिप्लीटिंग इट्स रिसोर्सेज including water, minerals, forests and rocks. And some people have forecasted that future में अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो वाटर की वजह से होगा. वाटर नहीं मिलेंगे पीने के लिए, यूज करने के लिए. So these are the things that are going to happen. Then other environmental issues in India includes indoor air pollution, sound pollution, agricultural land degradation, जमी हुई फसल नहीं हो रहा है, habitat destruction and loss of resilience in ecosystem. Okay, so ये सेकेंड वाला जो इमेज है, साइक्लोन फिंगल अभी अभी जो रिसेंटली हुआ है, it hits Chennai to its knees. 3 dead and lot of property losses हुए हैं, animals losses हुए हैं. तो ये सारा जो पिक्चर है अभी हम देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन इन आवर एनवायरमेंटल इकोसिस्टम. ये देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है कार्बन फुटप्रिंट. ये कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. जो आपको पता होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का लिस्ट दिया गया है वहां से. ये सारे बहुत हार्मफुल गैसेस हैं जो they're creating a lot of disaster. Okay, and these gases are created by our actions only. So इसलिए उनको anthropogenic बोला जाता है, because of the human actions they are created. Okay, water, emissions of carbon dioxide, electricity uses, transport, गाड़ी जो चलते हैं वहां से बहुत poisonous gases including carbon dioxide and other gases emit हो रहा है. Offsets waste निकल रहे हैं on day to day basis. Think of how much of waste. And सबसे important चीज है कि जो waste निकल रहे हैं, mainly जो electronic waste हैं, हम लोग यूज कर मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं. कंप्यूटर्स का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है, ये सारा कुछ ये मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है.
सर हाँ हाँ ଆପଣ ହଁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ସେଇତେ ନା ମୁଁ ଏମିତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନଉଛି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଗଲେ ହଁ ହଁ ଠିକ ହଁ 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 ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କାଲି ଯାଇଥିଲି ଆଜି ଯାଇନି ଠିକ ଅଛି ମୋର 5টাରେ ठीक 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 सो ये कार्बन फुटप्रिंट्स है और कार्बन फुटप्रिंट को जितना हम घटाएंगे द यूसेज ऑफ ये प्रैक्टिसेस जितना कम करेंगे उतना मतलब हम रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे ये सारे गैसेस को एमिट होने में ये एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है climate change is mostly caused by or influenced by the people either directly or indirectly इसको anthropogenic climate change बोला जाता है it is because of human activity the main driver impacting climate change by contributing to increase of greenhouse gases अब जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हो मीथेन हो and other such gases हो नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये सारा ह्यूमन एक्ट के वजह से हो रहे हैं इसमें एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस आया है जिसमें बोला गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन द टेम्परेचर एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम में जो टेम्परेचर था जो सरफेस टेम्परेचर था अभी उसमें से अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दिस विल नॉट the earth will not remain for lives to sustain उसमें जीवन धारण नहीं कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा संभव ही नहीं होगा क्योंकि ये अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ओशन वार्मर ओशन होता है ओशन अगर वार्म हो जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सी लाइफ इफेक्ट करता है एंड सी लाइफ लॉस होता है बहुत सारे जीव उसमें उसमें लाइफ लूज करते हैं एंड नो फूड विल गेट सी फूड्स नहीं हो पाता है देन मेल्टिंग राइस राइस मेल्ट होने की वजह से आइस मेल्ट होने की वजह से फ्लडेड कोस्टल एरियाज हम देख रहे हैं एंड दिस कोस्टल एरियाज टेक द लोकेलिटीज ह्यूमन रेजिडेंशियल एरियाज इनटू द सी मीथेन गैस एमिशंस हो रहे हैं which is 28 times more dangerous than the carbon dioxide gas and severe weathers हो रहे हैं hurricanes हो रहे हैं cyclones होते हैं drought आता है and less of potable water ड्रिंकिंग वाटर कम हो जाता है फूड कम हो जाएगा क्योंकि जब फसल ही नहीं होगा जब एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा एंड बैरियन लैंड हो जाएंगे देन स्टार्वेशन एंड सफोकेशन होगा लोग भूखमरी में मरेंगे एंड ह्यूमन माइग्रेशन हो रहा है ये तो एविडेंट है बहुत सारी जगह ऐसा है अभी वर्ल्ड में लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि वहां पे उनको जीने का जो साधन होते हैं वो नहीं है इसलिए उनको क्लाइमेट रिफ्यूजीज बोला जाता है एक जगह पे अगर एग्रीकल्चर नहीं हो पाया लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल शिफ्ट टू द अदर प्लेसेस ऐसे ही वार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इन्वेजन हो रहा है एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री पे वार कर रहे हैं ये सारा हम लोग अभी देख रहे हैं रिसेंटली वी हैव सीन द वार बिटवीन Russia and Ukraine and Israel, Palestine, and all those that we are experiencing already. न्यूज में हम लोग देख रहे हैं
एक पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, जिसमें रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ये कन्वेंशन में ये रिजोल्यूशन लिया गया था कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस, which is equivalent to 2.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, प्री इंडस्ट्रियल एरा से अगर बाई 2100 अगर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना नहीं चाहिए, अगर बढ़ेगा तो दिस विल बी ए डेंजर टू द होल एनवायरनमेंट। इसलिए हमको ट्राई करना चाहिए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस। बट अभी देखा जा रहा है कि इतने दिनों में अभी ग्लासगो का क्लाइमेट पैक्ट फिर से हुआ 2021 में, जिसमें फिर एक टारगेट फिक्स किया गया 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट है वो रीच करने जा रहे हैं, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। सो इसलिए फिर से वो टारगेट फिक्स किया जा रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस, बट इट्स 2 डिग्री सेल्सियस टू मच। हमने जैसे देखा कि दिस इज गोइंग टू बी ऑटर डेंजरस क्लाइमेटिक चेंज। डिग्री में पहुंचने के लिए, ओके, सो नाउ इट्स इम्पॉसिबल टू कीप इट अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए नया टारगेट फिक्स किया गया। सो जैसे कि आपने वहां पे देख रहे हैं, बाई 2017 हम लोग ये पार कर गए, 1 डिग्री सेल्सियस वाला मार्क पार कर गए, एंड वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स दैट 2 डिग्री सेल्सियस, एंड 1.5 डिग्री अचीव होने जा रहा है सम टाइम बिटवीन 2020 2040 के अंदर। 2040 में आज जैसे देख रहा है कि अनुमान लगा जा रहा है 2040 तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस अचीव कर जाएंगे टेम्परेचर। सो ये सबको देखने से लग रहा है कि वी आर नाउ इन ए क्लाइमेट इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है? जो कि लाइफ, जिसमें लाइफ एंड प्रॉपर्टीज का मतलब थ्रेट होता है, एंड इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो इस तरह की एक इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी में हम लोग अभी हैं। सो कमिंग अबाउट टू दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसलिए सोचा जा रहा है, जब हम देखेंगे बाद में कि डेवलपमेंट तो चाहिए, क्योंकि हमारे रोड्स बनने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग्स बनने चाहिए, इंडस्ट्रीज होने चाहिए, ये सारे डेवलपमेंट्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर पीपल विल नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, और लोगों में फिर वो इकोनॉमिक स्थिति जो है ठीक नहीं रहेगा, वी विल नॉट गेट टू ईट, एंड देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल डिग्रेड। ये सारा चीज होगा। इसलिए डेवलपमेंट इज समथिंग दैट हम कोई मतलब डेवलपमेंट एट every stage we'll have to do, but then the development has to be a different kind of development, which we now termed it as sustainable development. Okay, so पहले देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट है, इट्स a growth process, positive change or addition of physical, economic, environmental, social and demographic components। विकास को ऐसी एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें परिणाम स्वरूप वृद्धि, प्रगति, सकारात्मक परिवर्तन होता है, या किसी मौजूदा प्रणाली का पर्यावरण में भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जनसांख्यिकी घटकों का समावेश होता है। एंड ऑन द अदर हैंड, दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में एक यूएन कमीशन का रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट which meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their future needs। ऐसा विकास हो जो भविष्य की पीढ़ियों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना
वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता हो। हम इंडस्ट्री तो लगाएंगे, फिर इंडस्ट्री से जो जो वर्ज्य पदार्थ निष्कासित होंगे वो जाके हमारे वाटर बॉडीज को पोल्यूट करेंगे। ठीक है, अभी इमीडिएटली हम लोग देख रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, बट ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वाटर बॉडीज जो है पोल्यूट हो रहा है। सो पीने के लिए पानी का भी कुछ सालों बाद ये प्रॉब्लम आएगा। तो व्हाट अबाउट द फ्यूचर? सो जो फ्यूचर को इंश्योर करता है, जो डेवलपमेंट by conserving the resources of the earth for use by the future generation, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। डेवलपमेंट इज a process of growth, but sustainable development is a process of growth where we are not compromising with the ability of the future generation to meet their future needs. हम केवल हमारे लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी हम लोग देख के जो विकास होता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। एंड हम लोग देखेंगे सस्टेनेबिलिटी पैराडाइम क्या है। सस्टेनेबिलिटी पैराडाइम यह है कि the major changes from various paradigm of economic development जो हो रहे हैं, economic development has to happen. Economic development has to happen. आपने देखा होगा जो प्रोसेस था, पहले एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आए। विदाउट इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन क्षमता है वो हम डेवलपमेंट ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ओनली बाई फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बाद। सो डेवलपमेंट तो एक प्रोसेस है, उसको वो करना पड़ेगा in order to make the quality of life to increase and but ये सोचा जाता है कि in the process of the development जो सारे दुष्परिणाम आते हैं, जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो इनएविटेबल है और एक्सेप्टेबल है। अगर डेवलपमेंट करना है तो उसका जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस आता है वो तो होगा ही, इनविटेबल है, इनएविटेबल है, एक्सेप्टेबल है। ये धारणा था, ये हम मान के चले थे। लेकिन नाउ वी रियलाइज दैट द मेजर डैमेज ऑफ सीरियस थ्रेट्स टू द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन and the environment in pursuit of economic development has no place within this sustainable paradigm. अब हम ऐसे खोज कर रहे हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के भलाई के लिए बड़ी क्षति व गंभीर खतरों का स्थिरता प्रतिमान के भीतर कोई स्थान नहीं है। So we are not thinking of or we are not in favor of that development जो कि बड़ा क्षति पहुंचाता है मनुष्य, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के ऊपर जो बड़ा क्षति पहुंचाता है, उस तरह की डेवलपमेंट को हम नहीं चाहते। तो ये सस्टेनेबल पैराडाइम ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप हुआ है। और ये एजेंडा 21 जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है, ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इसमें एजेंडा 21 में इसको ये जो टर्म है उसको ये टर्म को दिया गया एंड इसमें बोला गया इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली एंड नेशनली एंड लोकली एट एवरी लेवल, वर्ल्ड के लेवल पे, प्रति कंट्री के लेवल पे एंड लोकल के लेवल पे, by organizations of the United Nations system, governments and major groups in every area in which human impacts on the environment should be reduced. So Agenda 21 of Rio, which is known as Rio Declaration on Environment and Development and the Statement Principles for such Sustainable Management of Forests were adopted by 178 countries
at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCD, जो कि जून 1992 में हुआ था. So forest resources का sustainable management, you cannot cut forest. डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट के नाम पर डिफॉरेस्टेशन को अलाउ नहीं करना चाहिए. इस तरह की ओपिनियंस आए उसमें, इस तरह की प्रावधान उसमें सोचा गया. द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड in 1992 December to ensure effective follow of the provisions of that the UNCD has given to monitor and to report on implementation on the agreement at local, regional and international levels. And this was agreed that a 5-year review of Earth Summit progress should be made. हर एक 5 साल में उसका रिव्यू किया जाएगा. एंड 1997 में जो पहला रिव्यू हुआ बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीटिंग में. सो हर एक 5 years में there is a meet and then they review the situation of environmental impacts of development on environment. And हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3 डायमेंशंस और 3 आयाम उसका है. एक है इकोनॉमी, दूसरा सोसाइटी एंड 3 एनवायरनमेंट. Economical sustainability, societal sustainability, sustainability of the society, human society, and the environment. Also the culture. So ये 4 चीज को मेनली लेके हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का धारणा करते हैं. So we visualize, we think of the dimensions of sustainable development looking at these 4 factors: sustainability in the environment, sustainability in our economy, sustainability in our society, and sustainability of our cultural practices. जो culture है. Sustainability versus sustainable development. ये sustainability and sustainable development में क्या अंतर है? Sustainability है एक long term goal. It is thought of as a long term goal. हम कितने दिन तक, कितना साल तक, कितना मतलब कितना टाइम पीरियड के लिए हम किसी चीज को सस्टेन कर पाएंगे, उसका है वो है उसका सस्टेनेबिलिटी. स्थिरता को अक्सर दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है. तो हम सोचते हैं कि ये दिस वर्ल्ड शुड रिमेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हम सब सोचते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि मेरा लाइफ टाइम में ये वर्ल्ड रहे, ये दुनिया रहे और मेरे बाद ये दुनिया खत्म ही हो जाए. ऐसा नहीं सोचते. हम सोचते हैं कि hundreds and 100 years तक ये हमारा पृथ्वी रहे. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये रहा. सस्टेनेबिलिटी सोच मतलब हम चाहते हैं कितने दिन तक, इतना दीर्घकालिक तक हमारी पृथ्वी रह सकता है. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल टू द प्रोसेसेस एंड पाथवेज टू अचीव इट. एक तो अगर विजन के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा मिशन है. मिशन में हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे हम करेंगे उसको, दीर्घकालिक लक्ष्यों को कैसे पूरा कर पाएंगे, कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि ये जो हमारा वर्ल्ड है ये बहुत दिन तक सस्टेनेबल रहे. तो इसके लिए हमको कुछ प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि एटलीस्ट जो मिटिगेट करेगा. इवन वी कैन नॉट स्टॉप इट, बट देन वी कैन mitigate that. We can slow the process of it happening. Okay. जो कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसे एग्रीकल्चर जो कि कम हार्म पहुंचाता है, जो नेचुरल, जो हमारा सॉइल है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको कम हार्म पहुंचाता है. अगर हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे
तो इनिशियली तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा, पर देन ग्रेजुअली क्या होगा, वो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, उसमें बहुत सारा केमिकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे और ये इनफर्टाइल हो जाएगा। तो इसलिए हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए, जो कि बहुत दिन तक हम उसको कर पाए। एंड फॉरेस्ट्री भी ऐसी है, फॉरेस्ट को हम लोग अगर नष्ट कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस, तो it's a process that immediately we can see that we are developing, but then in a long term we are harming the environment. And sustainable production and consumption, हम जैसे कि कंजम्पशन कर रहे हैं पेट्रोल की कंजम्पशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स has increased, the number has increased and multiple times increase हो रहा है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ